जब आप कमजोर होते हैं तो आपको हर कोई चोट पहुंचाना या दबाना चाहता है। ऐसे ही कुछ हाल हमारे इंडिया का भी था जब हमारे पड़ोसी देश ने न्यूक्लियर टेस्ट बना लिया। तब वो हमें और भी ज्यादा डरा और धमका रहे थे, बट तब हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं और पूरे वर्ल्ड को साबित कर देते हैं कि हम इंडियंस किसी से भी कम नहीं है और कोई हमें अंग्रेज रोक नहीं सकता। तो आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वर्क कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, एंड ऑल्सो वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ भी काम करती हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Thank you so much, ma'am, for your time, and I really respect your time. Thank you so much. Thanks for coming. Okay, and okay. So, ma'am, should we start the questions? Yes, we can start the questions, but I wanted to know why do you have this Jaguar cap on? Actually, ma'am, मेरे बार्बर ने बाय मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक कर दिया है मेरे सिर पे, तो फिर मुझे कराना पड़ा ये। कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैम आपको अच्छा लग रहा है, बट मेरी मम्मी को बोले 2 महीने मैं कहीं चली जाती, जब तेरे बाल आएंगे तब वापस आऊंगे। तो पहन लेता हूँ कैप, नहीं तो वीडियो देखेंगे तो फिर बोलेंगे कि वहाँ पे भी क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं मैम। तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन इज, आवर ऑडियंस वांट्स टू नो अबाउट योर जर्नी एंड व्हाट इंस्पायर यू टू बिकम अ साइंटिस्ट। Okay, so my journey started at school, as you know, and particularly, when you have very good teachers, you want to emulate them. Your dreams and ambitions are shaped by what your teachers tell you. Yeah. So I had an amazing physics teacher in my school, St. Francis Convent in Jhansi. And she encouraged me at every step and even sort of lauded me whenever I did well. So आपको पता है ना, शाबाशी मिलती है तो आपको अच्छा करने का मन होता है। तो स्कूल के टाइम पर यही रहा और यही सिलसिला आगे भी चलता रहा यूनिवर्सिटी में और आगे बढ़ के। नाइस, सो इंस्पायरिंग जर्नी मैम। सो इट मीन्स कि अगर हमें स्कूल्स में टीचर बहुत अच्छे मिले हैं ना, इफ वी गॉट एप्रिशिएशन, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने। ओके मैम, सो मैम सेकंड क्वेश्चन इज, कुड यू प्लीज शेयर दैट मोमेंट व्हेन यू मेट टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम। मैं कहूँगी कि इट इज़ सच अ हम्बलिंग मोमेंट इन माय लाइफ एंड अ वेरी टर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट in my life, because science and scientists are not just to do the science and the technology, but it is about making an impact. करेक्ट। And that moment told me, that a man can be humble and do so much work and connect with youngsters and do such big things for their country. और वो गोल फिर अनडूएबल नहीं लगा मुझे एक कुछ क्लिक हो गया मन में कि मुझे भी कुछ ऐसे करना है। So, as we all know, Dr. APJ Abdul Kalam is so humble person and so amazing. It's a missile man for our country. जी, and हमें बहुत अच्छा लगा, like you met and you learn, और वो learning हम आपसे सीख करके हम अपने audience को दे रहे हैं। जी। And ma'am, our government is also campaigning the motto "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ," right? That initiative, and I'm sure from our audience, there are a lot of audience, they want to become a scientist, but they don't know the complete roadmap, because on the internet it's not like completely in simple ways. So could you please guide them, especially for the girls, so they become a scientist and contribute to the society? See, I believe that every kid, every child has the capability of becoming an Einstein. Everyone. How we get there is the journey, the individual journey. The main point is that we have to believe in ourselves, and I would say that the society should believe particularly in girls. And I mean, as you know very well, that all our results, if you look at high school and all throughout the grades are always won by the girls. Where do they drop out? That leaky pipeline has to be plugged. And there we need to unshackle our stereotypes that women can't do this, and ये काम लड़कियों का नहीं है और ये काम लड़कों का है. And I think हमारे country में बहुत progress हो गई है. आप देखें, all the ISRO ladies, Yes ma'am. करो, everybody can do it. और ये नहीं है कि आप अगर साड़ी पहन लिया तो आप काम नहीं कर सकते. It's not like that. So I do believe everyone has their own journey, और अगर उसमें positivity आ जाए, empowerment आ जाए, जो हमारी गवर्नमेंट कर ही रही है, मुझे लगता है कि that the sky is the limit. Correct, ma'am.
Amazing, ma'am. So, ma'am, basically, for becoming a scientist, we need to do PhD. It's a mandatory. So it depends, you know, science also happens in the private sector. R&D happens in laboratories outside, PhD, if I can say so. लेकिन यदि आपको academia में रहना है, you know, you have to teach and you have to work with the government, with making collaborations, not only national but international collaborations. क्योंकि आज तो global है science, you know, and without being global, the impact will be rather limited. Or even if we are spearheading in our country, we need to go global, you know, still with a local view on what is it that we can do for our country and what is it that we can take for the world from our country. Yeah, correct. So PhD definitely is a good training ground, I would say, because बिना training के तो आपका काम अधूरा रह जाता है, और PhD जो है वो अच्छे से सिखा देती है कि कितना आप मेहनत कर सकते हैं, and your own value you start understanding. Correct, ma'am. So it's a very, we can say it's some kind of mandatory because ये आपके skills को और enhance करता है. If you want to stay in academia. Okay. जी. And ma'am, next question is, could you please share any funny incident that happened while working at CERN? बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए हैं, मतलब एक तो बहुत ही आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट तो एकदम सडनली बंद हो गया एट सम पॉइंट, जब हम कमीशनिंग कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट की। तो आप जानते हैं बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये, और हम लोग सरफेस पर ही उसकी सरफेस यानी कि कैवर्न में तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सरफेस पे उसको बना के और टेस्ट करके फिर हम उसको नीचे लेके गए। तो जब टेस्टिंग कर रहे थे तो सडनली बंद हो गया और समझ नहीं आया कि हुआ क्या। और फिर धीरे धीरे करके डिबग करते करते हमको ये पता चला कि एक चूहा जैसा एक होता है, वो वीजल बोलते हैं उसको, वो उसने केबल्स को काट लिया था। तो द पावर वाज नॉट कमिंग एंड एक छोटा सा चूहा महाराज ने हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। ओह माय गॉड। फिर हमें उसमें फिर पूरा टाइम कंज्यूम, फिर दोबारा अगेन आपको रिस्टार्ट। वो मतलब ये अच्छी चीज है ना, फिर समझ आ गया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट चूहा, वी हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बर्ड्स आल्सो। और भी कई इंसिडेंट्स इसी तरह के हुए जिसमें कि हम समझ नहीं पाए कि क्या कहाँ इसमें गड़बड़ हुई कि एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। जी। So, ma'am, were there any challenges you faced at CERN as a woman while working? सो ऐसा है, देखो चैलेंजेस तो मेन और वुमेन दोनों को होते हैं। वी कैन नॉट से कि मेन को नहीं होते हैं, वुमेन को थोड़े ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो जिस ज़माने में मैं गई हूँ वहाँ पर, जिस ज़माने में मैंने अपनी स्टडीज शुरू करी है, तो मेन चैलेंज तो ये था कि एक स्टेरियोटाइप का, यू नो, आप इंडिया से आए हैं, यू नो, इन अ वाइट मैन्स वर्ल्ड, करेक्ट, ओके, इट्स अ यूरोपियन वर्ल्ड, आप एक आउटसाइडर हैं, करेक्ट, लैंग्वेज अलग है, वहाँ सब कुछ फ्रेंच में था उस जमाने में, तो और भी ज्यादा फ्रेंच रहती थी। एंड टेक्नोलॉजी वाइज वो लोग बहुत आगे थे हमसे उस वक्त, जो मेरी ट्रेनिंग थी उसके हिसाब से। तो जिस तरह से मुझे वो चैलेंजेस ओवरकम करने पड़े, और उस वजह से मैंने सेकंड पीएचडी करी, जो आप पहले पूछ रहे थे कि पीएचडी जरूरी है, तो मैंने 2 करी इसीलिए कि आई कुड कम अप टू स्पीड। और उसका मैं एक किस्सा बताती हूँ कि जब मैंने 4 साल कर लिए अपने पीएचडी के वहाँ, सेकंड पीएचडी के, अच्छा, तब उन्होंने ये बताया कि जस्ट सबमिट करने वाली थी मैं, उन्होंने बोला कि आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, अच्छा, एंड दैट टू इन फ्रेंच। ओह माय गॉड। अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। सही बात। तो एनीवे मैंने फिर एक ट्यूशन लगाई, जी, ट्यूशन लगा के फ्रेंच सीखी, उधर जो थ्योरी का पार्ट था वो सीखा सारा। ऑब्वियसली एग्जाम का जो पार्ट था, उन्होंने कुछ मेरे को स्पेशल क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोविक थ्योरी के ऊपर एग्जाम्स थे वो मेरे, फ्रेंच में उनके जवाब देकर मुझे 76% आया उस। ओह वाओ। सो इट वाज नॉट सिंपल। और उसके अलावा भी क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ बहुत अलग है, स्नो पड़ती रहती है, उस जमाने में और भी ज्यादा थी क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज के मारे थोड़ा कम हो गया है। बट यू नो, ड्राइविंग अराउंड इन स्नो, डीलिंग विथ योर फैमिली एंड विथ योर चाइल्ड, यू नो, कि बच्चे को भी आपको टाइम से पहुंचाना है, कहीं उसके कोर्सेज हैं या क्रैश से पिकअप करना है। तो इस तरह के चैलेंजेस जो एक नॉर्मल एक वुमन की लाइफ में आते ही हैं। और मैं कहूँगी कि फेयरलेस होना हमें ज़रूरी होता है। और इंडिया में आप देखते हैं ना कि हम लोग इतने डाइवर्स लोग हैं, नॉर्थ साउथ में कितना, मतलब अगर आप साउथ में जाके काम करेंगे तो इसी तरह के चैलेंजेस आते हैं आपको। सही बात। तो कैसे आप उनको ओवरकम कर लेते हैं, तो हमारा माइंड काफ़ी खुला होता है कि वी हैव टू जस्ट गो अहेड एंड डू व्हाट वी मस्ट डू। या करेक्ट।
It's so inspirational मैम, बिकॉज मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे आपके ऊपर, एंड जब आप स्पीच दे रहे थे रिपब्लिक भारत में, देन यू हैव शेयर योर जर्नी कि वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, आपको जो लैब दिया गया था वहाँ पे वो भी कंप्लीट नहीं था, फिर आपने वहाँ पे कंप्लीट करके वहाँ पे आपने एक अपनी पहचान बनाई, वहाँ पे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो आपके अंडर काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये दिखता है मैम कि हम इंडियंस जो हैं वो कितने वुड से कि कितने काइंड ऑफ हम्बल हैं, एंड अपने जो फोकस्ड हैं अपनी चीज़ों पे। फोकस्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, एंड आई वुड से कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर जाते हैं इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं आपको, और यदि आप साइंटिस्ट वाली जो एक करियर लेना चाहते हैं तो उसमें रास्ते बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आई कैन मेंटर एज मच एज पॉसिबल बच्चों को, गर्ल्स को पर्टिकुलरली, बिकॉज सही वक्त पे सही मेंटर मिलने से मैं सोचती हूँ कि जर्नी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। Completely changed, correct मैम। जी। And ma'am, how do you see artificial intelligence and machine learning to contributing to the future as a scientist? So as a scientist, you see, जो AI है और machine learning, it's becoming part of life. You know, there was a time when one would remember hundreds of phone numbers by heart. Correct. और अब ये है कि आप बिना फोन के, बिना डायरेक्टरी में जाए हुए, कॉन्टैक्ट्स में जाए हुए, आपको याद नहीं रहते हैं, सो यू बिकम डिपेंडेंट। सिमिलरली जो AI है, हमारे CERN में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो ऑलरेडी हम उसको यूज कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि डेटा एनालिसिस जो है उसमें जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे हिग्स बोसॉन को हमने कैसे ढूंढा, उसमें हमारी टीम्स ने एल्गोरिथम्स बनाए कि उन एल्गोरिथम्स के थ्रू हमें वो वाले पैटर्न्स को कलेक्ट करना है जो हिग्स बोसॉन का सिग्नेचर है। Oh. तरह तरह के डिफरेंट सिग्नेचर्स हैं, एंड वी शुड नॉट मिस एनीथिंग, क्योंकि हिग्स बोसॉन विल बी 1 in 10 to the 14 Oh. कोलिशंस, तो उसको पकड़ना है आपको। जी। तो पैटर्न रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो CERN में और हमारे एक्सपेरिमेंट्स में AI तो बहुत पहले से चल रहा है, और जिंदगी में आई सी कि हर क्षेत्र में देखा जाए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग है, क्लाइमेट मॉडलिंग है, ड्रग डिस्कवरी है, यू नो एवरी एस्पेक्ट, हेल्थ केयर है, यू नो एजुकेशन तो बहुत बड़ी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आई फील कि हमको उसको अपने साथ एक टूल की तरह लेके चलें अगर हम उसको, तो वी कैन डू वंडर्स विद दैट एज वेल। Correct. जी। एंड मैम, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, तो हमारे जैसे हमारे उसमें चैट जीपीटी एंड डीप सीक जो AI है, तो मेरा एक फ्रेंड है जो भी NUS में पढ़ रहा है, वो बोल रहा था कि जब AI नहीं था तो हम लोग कोड लिखने में टाइम ज़्यादा लगाते थे, बट जब हमारे पास AI है तो AI कैन जनरेट द कोड, बट डिबग करने में अब ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो ये चीज़ बता रहा था, इट्स द सेम, हमें AI पे डिपेंड कम्प्लीटली नहीं होना चाहिए, बट वी शुड यूज इट, हमें उसको काम में लेना चाहिए, जी। नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इट, बिकॉज समटाइम AI माइट बी रॉन्ग। It's a tool. It's a tool. It's like a knife in the kitchen. Correct, ma'am. And ma'am, do you believe we are close to discovering something amazing that never happened in science? It can happen. अभी हम जैसे CERN का ही देख लीजिए आप, हमारे जो नेक्स्ट कोलाइडर बन रहा है, फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर, दैट्स गोइंग टू बी 100 किलोमीटर्स इन सर्कमफ्रेंस। आप सोचिए एक apparatus जो कनेक्टेड है 100 किलोमीटर्स विद वैक्यूम टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक्स, और उसमें अगर हम ये जो कोलिशंस करेंगे विद ग्रेटर एनर्जी, you never know what we might find. Correct. We might find clues to dark matter or dark energy, or how antimatter behaves. You know, ये सारी स्टडीज हो रहे हैं CERN में, और कुछ इवेंट्स ऐसे दिखते हैं कि शायद हमारी जो समझ है वो कंप्लीट नहीं है, और वो तो हम जानते ही हैं कि वो कंप्लीट नहीं है, but we might find clues to explain that gap. Ma'am, so what are the most existing discovery made at CERN recent years? रिसेंट ईयर्स में तो हिग्स बोसॉन तो बहुत बड़ी जी, हाँ। डिस्कवरी रही है। यू नो, गॉड पार्टिकल आपने सुना ही होगा, जी। गिविंग मास टू अदर पार्टिकल्स। बिग बैंग के टाइम पर वेयर डिड ऑल द एंटीमैटर गो? तो एंटीमैटर को हमने प्रोड्यूस किया है CERN में, दैट इज अ बिग डील। और उसको फिर हमने स्टडी किया है कि अंडर ग्रेविटी एंटीमैटर कैसे बिहेव करता है। यू नो, मैटर फॉल्स डाउन इन ग्रेविटी, डज एंटीमैटर गो अप? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत एक्साइटिंग है, और इस तरह की रिसर्च हो रही है CERN में। And then it's not only about this, it's also about sustained development goals. You know, we have an experiment called CLOUD,
अच्छा which is actually looking at how the clouds are formed and what is the use, or how do the particulates in the cloud अच्छा affect our climate हाँ ओके and the cosmic Interesting. rays. जी जी, तो there is lots happening, you know, Hmm. and आप कहाँ तक मतलब कर सकते हैं within the limited means, because in the end means तो limited ही होते हैं. जी correct. जी. And ma'am, till now we knew about the roadmap of the scientist, how to become a scientist, right? But there is one question कि भाई अगर मैं scientist बनता हूँ तो how much I can earn in India? जी, तो देखो साइंस इज लाइक एन एडवेंचर. Correct. तो आपको पैशनेट होना है कि मुझे साइंस करना है, तो मुझे पैशनेट होना है, मुझे ये एडवेंचर करना है, बिल्कुल. और किसी ना किसी तरह से अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना है और आगे लेके जाना है. बिकॉज एवरी टाइम यू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाई विल ऑलवेज कंटिन्यू. तो हमारे कंट्री में जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैं बिलीव करती हूँ कि दे आर पैशनेट पीपल and they work for the passion of science and not really for the money. However, in life you need money, correct, right? So India mein there are very good I think provisions for scientists, and government has made even revisions of those provisions for their salaries. और in addition funds होती हैं, grants होते हैं, और अब जो international जो collaboration है, तो उसमें भी there is a huge possibility of working together with funding coming from anywhere. So I believe कि scientists के लिए आज के टाइम पर it's not a big challenge. It is a competition in fact. Challenge, चलो कि भाई वो भी फंडिंग पॉसिबल है, वो भी फंडिंग पॉसिबल है, लेकिन हमारे कंट्री में तो कंपटीशन भी काफी है बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस और बिटवीन द साइंटिस्ट. सो all said and done, it is challenging. Could you please share any number, like how much they can make, like when they are fresher or they just recently graduate? सो इंडियन सिस्टम में देखो, मैं बहुत ज्यादा अंदर तो नहीं हूँ, बट आई नो कि दैट वंस यू बिकम अ प्रोफेसर जी. you have a very good salary, and I think it can be anything between 15 to 20 lakhs per year. So it's not a completely, it's quite a good Yeah. scale in the country. When you start, even as a research scholar, you get, मुझे 600 रुपए मिलते थे जब मैंने स्टार्ट किया. Oh. सो अब आप सोचिए वहां से लेके आज की जर्नी की, जहां पर आपको ऑलमोस्ट 1 लाख मिले और फिर आपको फंडिंग भी मिले रिसर्च करने के लिए. जी. तो यू हैव टू लुक एट एवेन्यूज कि आप कहाँ पर जा सकते हैं, कौन सी लैब्स में यू कैन वर्क, कौन सी यूनिवर्सिटीज में यू कैन वर्क. जी. इस तरह से कोलैबोरेशंस में आप काम कर सकते हैं. रास्ते बनाने पड़ते हैं. करेक्ट मैम, रास्ते बनाने पड़ते. कुल मिला के वी कैन से कि अगर आप साइंस में आना चाहते हैं तो सिंपल फंडा ये कि आपको एक एडवेंचरिस्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट एडवेंचर. एडवेंचर भी है, और आपकी एक क्या बोले उसके रूथलेसनेस है कि मुझे करना है, और एक बिल्कुल फियरलेस होके उसको करना पड़ेगा. जो शैकल्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, उनको यदि आप देखें कि जो लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने चैलेंजेस को ओवरकम किया है. And ma'am, what would your advice to young students and especially girls, they wanna come in a science field or if they wanna become a scientist, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होंगी? Right. So I'll tell you what the important thing to understand is कि if you are passionate about becoming a scientist, there are many ways of becoming a scientist. You can go to the private sector as well. The people, for example, आप glue को ले लीजिए, फेविकोल जानते हैं? जी, Right. बिल्कुल मैम. तो फेविकोल में भी एक R&D सेक्शन है, हाँ जहां पर वो उस ग्लू को इम्प्रूव करना चाहते हैं. जी. राइट. तो वो केमिस्ट्री हो गई. उसी तरह से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं और जो बड़ी एमएनसीज हैं, उनका एक R&D सेक्टर होता है. नेस्ले को जानते हैं, जी, Nestle. उनका एक इतना बड़ा बायोटेक का R&D सेक्टर है. जी. इस तरह से आई फील कि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर. रिमेन क्यूरियस कि मुझे करना है, क्या करना है, किसमें कंट्रीब्यूट करना है. और कई बार जब आप छोटे होते हैं आपको नहीं पता होता है कैसे डायरेक्शन ले. ये तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उसको अपने से जोड़ें, अपने कि किस तरह से, व्हाट इज इट दैट मेक्स मी हैप्पी, और उस हैप्पीनेस के साथ अगर हम अपने इम्पैक्ट को जोड़ लें कि हम क्या करना चाहेंगे,
So that will really make a great scientist. एंड करेक्ट मैम, एंड इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैम। ये क्वेश्चन मैंने अपने फादर से पूछा था व्हेन आई जस्ट पास आउट 12th कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि देखो यहाँ पे रोड पे ये जितने लोग फल फ्रूट्स बेच रहे हैं, तुमको देखने में सब अच्छे लग रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत अच्छा है, एंड नाउ हाउ यू कैन डिसाइड कि मुझे कौन सा चूज करना है। तो उन्होंने बोला था कि द ओनली वे यू कैन जस्ट गो एंड टेस्ट इट। जी, जैसे 5 है फुल फ्रूट्स के स्टॉल, तो आप 5 पे जाइए, टेस्ट करिए, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप उसको प्रोसीड करिए। Absolutely. तो एक ये भी बहुत अच्छा वे अपने करियर में, अगर आप लाइक स्पेशली यंग जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, अरे इन सोशल मीडिया पे ये सब चीज चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है उस चीज में, आपको वो चीज प्रोसीड करनी चाहिए, देन यू कैन बिकम जी, एट सम लेवल। मैं तो कहूंगी कि जब से आप 7th 8th में आते हैं तब से आप इंटर्नशिप्स करना शुरू कर दीजिए। जी, जैसे कि आप बैंक में जाइए, 1 महीने की इंटर्नशिप करिए, या तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, या तो लगेगा भाई ये तो नहीं करना मुझको। देन यू गो नेक्स्ट वन यू गो टू अ साइंटिस्ट की लेबोरेटरी में, जी, 1 महीना वहां लगाइए, एंड देन यू से ओ वाओ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। So that choice can be done after continuously trying out various things, like you rightly said and your father rightly said. यस। एंड मैम वन लास्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे जैसे अगर आप अभी इतने बड़े लेवल पे आप साइंटिस्ट हैं, आप यू वर्क विद द पीएम, यू हैव आल्सो वर्क विद द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो आप उस डॉक्टर अर्चना को क्या बोलेंगी जब वो आज से 15 साल पहले थी, कि हमें क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए एज अ साइंटिस्ट, हम क्या चीज़ का टेक केयर कर सकते हैं जो कि हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट मेक्स मी हैप्पी। मैं अगर बच्चों के साथ काम करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं टीचर्स के साथ काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी कुछ मैंने सीखा है मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों के साथ या जिन टीचर्स के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं उनके साथ शेयर करूँ। और हमारे प्रेसिडेंट कलाम एंड ऑनरेबल पीएम जो है वो उसी डायरेक्शन में हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, यू नो दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन द कंट्री देन वी आर हेल्पिंग यू हियर, एंड नॉट ओनली दैट दे आर वेरी प्राउड of people who are making their name outside the country also. या, So that pride करेक्ट, helps you, it encourages you. क्योंकि पहले तो ऐसे मुझे लगता था कि दैट हम लोग कहीं खो गए, यू नो हम कौन है, हम कहाँ हैं। करेक्ट, साइंटिस्ट लोग तो सबसे नीचे लैडर पे रहते थे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ बीइंग यूजफुल पीपल इन द सोसाइटी। लेकिन धीरे धीरे करके यू नो जो ये इंडिया का जो साइंस नैरेटिव है और जो साइंस में जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि आज के तारीख में जो मैं कर रही हूँ मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं कर पाऊंगी। तो वो जो एक विश्वास है अब जे अंदर, वो मुझे पहले से ही होना चाहिए था, एंड दैट आई कुड ड्रीम बिग, आई कुड बी सो फोकस्ड, रूथलेसली फोकस्ड, कि मुझे अपने टाइम को बिल्कुल बचा बचा के यूज करना चाहिए था टुवर्ड्स माय गोल। किया मैंने अपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया, जी, बट यदि मैं पीछे देखूं तो मुझे लगता है कि आई डिड लूज टाइम हियर एंड देयर। तो एक जो मेंटरिंग है, आप ढूंढिए मेंटर्स को, पहले से ही ढूंढना शुरू कीजिए, जी, एंड देयर आर ऑल गुड पीपल अराउंड यू, यू नो, एंड एवरीवन वांट्स टू हेल्प ईच अदर। क्योंकि किसी दूसरे के लिए अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो आप एक्चुअली स्वार्थी हैं, बिकॉज यू फील गुड आफ्टर दैट। या, तो आप वो करना चाहते हैं, एंड आई बिलीव कि अगर आप बोल रहे हैं जैसे 15 साल पहले वाली अर्चना को अगर देखा जाएगा तो डेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप डेयर करिए, आप करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यू विल फेल, बट इट्स ओके टू फेल, बिकॉज वही स्टेप है जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। करेक्ट, अमेजिंग लाइन्स मैम। Thank you so much, ma'am, for having your time, and thank you so much, ma'am. My pleasure. Thank you so much for having me. Thank